We're going to split this into 3 parts. 20, 20, 20, okay? 20 minutes, I'll be talking to you about bringing out some very interesting facts, okay? 20 minutes, I'll give you to prepare an entrepreneurial pitch. How many of you want to go on and start your own restaurants? Okay, right, wonderful. How many of you are chefs, by the way? अरे भाई, मतलब कितने लोग शेफ बनना चाहते हो? ओके, राइट? एंड उनमें से कितने लोग रेस्टोरेंट चालू करना चाहते हो? ओके, कितने लोग हैं जो F&B में, हाथ नीचे, कितने लोग हैं जो F&B में जाना चाहते हैं और फिर रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं? ओके, वंडरफुल, राइट? सो द नेक्स्ट 20 minutes would be, I'll give you some time to either form a team and come up with a business idea. I will set some parameters that you need to meet, and then I'll give you 20 minutes where one by one you will come to the stage and pitch your own business idea, right? That's what we're going to do. At the end of it, there will be one winner, ठीक है? ट्रॉफी और सर्टिफिकेट लाना था, मैं लाना भूल गया, घर रह गए, सॉरी, बट वो I'll have those delivered later on. निमिषा मैम के पास आ जाएंगे वो, right? So those will be handed over to the winner. So I hope at least some of you are excited to make a pitch later on. Yeah, wonderful. Okay, shall we start then? Okay, ready, Mansi? Okay, all right guys. So first question. How many of you here feel that climate change is a hoax? झूठ है, myth है. Climate change is a hoax. It's a lie. It's a lie propagated. Anybody here who feels that? No. How many of you don't care about climate change? होता है तो हो यार, अपना क्या जा रहा है? ठीक है. Okay, wonderful. ठीक है. इन पर नजर रखना. यही हमारी दुनिया के लिए आगे जाकर आफत बनेंगे. अच्छा. Coming back. Okay. Again, once more, I ask you the question: how many of you want to make money? Okay. How many of you would like to make your money through your own business? Now, I have an interesting question. For those of you who want to make money through your own business, how many of you would like to make money through your own business while countering climate change? कभी सोचा ही नहीं ना? आइडिया भी नहीं आया, राइट? दिमाग में कि ऐसा हो भी सकता है. ठीक है, fair enough. So I'll tell you why this is important. So for that, I have some very interesting stats in place for all of you to know about. How many of you eat meat in this room? Non-veg, right? Eggs, meat, whatever you're eating, right? So I was one of those people who ate meat for a very long time. I eventually quit. Unfortunately, I've seen what happens in a slaughterhouse because I used to supply products to one of the slaughterhouses. So so-called humane meat, I've seen how it gets done, right? Anyways, keeping that aside, that's when I decided to quit my meat. And then I also found out about the impact, right? So what's happening right now is, दुनिया में जितनी जमीन है, ठीक है, जितनी जमीन है जिसपे इंसान रह सकते हैं, आपको here's a quick question, what percentage of that land do you think is right now used to grow food? कितना? 5%, okay? एक guess आया 5%. Anything else? Somebody wants to go higher? 37.5. Anybody who wants to go higher? 45% is the right answer. ठीक है, तो of all the land available at this point of time, come. 45% of all the land of all the land available, 45% is currently being used to grow food. अब मजेदार क्वेश्चन पूछता हूं, इससे भी इंटरेस्टिंग. चलो, ये 45% को मान लेते हैं कि ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का ये जमीन है, मान लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट. इसमें से इंसान के लिए खाना उगाने के लिए कितना इस्तेमाल होता है? अच्छा, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है? यार ठीक है, कोशिश कर लेंगे, जितना हिंदी उतना हिंदी, जितना इंग्लिश उतना इंग्लिश. सो ये जो 100 स्क्वायर किलोमीटर हमने एक अज्यूम करा, इसमें से ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए खाना उगाने के लिए कितना जमीन इस्तेमाल होती है? कितनी? 20%. Who wants to go lower? नहीं. Okay, so 12.5%. Okay, 12.5%. So where do you think the rest of the land is going? 5% जो है, आप जो Amazon से जो सामान मंगाते हो उसकी पैकेजिंग इस्तेमाल, ये सब जो भी हम करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? 5% जो बेसिकली वुड लॉगिंग और इसमें यूज होता है. कुछ परसेंट है जो कि आपका कॉटन और ये सब जो टेक्सटाइल के लिए जो हम क्रॉप्स उगाते हैं या दूसरे एप्लीकेशंस के लिए क्रॉप उगाते हैं, वहां यूज होता है. वेयर डज द रेस्ट गो? एनी गेसेस, एनी आइडियाज? बचा अंदाजा 80%, 80% गिव और टेक.
वो किसके लिए यूज होता है? परफेक्ट. व्हाट इज लाइफ स्टॉक? करेक्ट. Livestock, animals who we kill and eat, animals who we first use in industry. फिर जब when we feel अब ये useless हो चुके, बेकार हो गए, तो हम उनको मार देते हैं और फिर हम उनको जो भी मतलब कोई खाता है, कोई उसका चमड़ा खरीदता है, जो भी करना है, whatever you want to do with it. ठीक है. अब आप कहोगे यार ये तो मोरालिटी की बात है, हमारा कल्चर है. पहली बात, कल्चर राजस्थान के कितने हैं यहाँ पे? हाँ, सती तो यहाँ का भी कल्चर था ना, बंद किया ना. कल्चर को भी हमें चेंज करना होता है. कीपिंग दैट असाइड, तो बट ये जो हो रहा है इसका इंपैक्ट क्या है, इसको ये क्यों मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं इसके बारे में? इसके बारे में मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि टू अचीव दिस वी आर बेसिकली टेकिंग अवे फॉरेस्ट्स. ओके, वी आर टेकिंग अवे ग्रासलैंड्स, वी आर टेकिंग अवे आवर मार्शेस, एंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर, हम क्या करते हैं, ऐसे जंगल का जंगल साफ करते हैं, पूरा का पूरा जंगल साफ करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, एक तरीके की हमको एक क्रॉप उगानी शुरू कर देते हैं जो कि फिर हम जानवर को खिलाते हैं. राइट. मोस्टली क्या किया जाता है, 80% ऑफ लैंड में से भी मेजॉरिटी तो इसलिए होता है कि बस जानवर को वहां छोड़ दिया जाता है, वो जाते हैं अपनी घास वास खाते हैं, खत्म. बाकी के ऊपर हम या तो उनके लिए घर बनाते हैं या फिर हम उनको वहां पर कोई मोस्टली सोय एंड कॉर्न, राइट, वो उगा करके उनको खिलाया जाता है. और ये अगर आपको लग रहा है इंडिया में नहीं होता तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी. ठीक है. As a nation, we think we love to save our cows. But I was just sitting with a gentleman in your principal's office, and he very proudly claimed that India is the world's largest beef exporter. Did you know this? Very unfortunate, right? Very unfortunate. Why? Now, as a tradition, we've always loved the cow, right? For whatever reasons, because the cow has always been very, very helpful for a family. But why is it bad why is it really bad to become the world's largest exporter of beef? So there are two reasons. How many of you know that cows are the largest producer of methane on the planet? What is methane, by the way? आधे चेहरे ये क्या बात हो गई यार, मीथेन क्या है? मीथेन गैस है, राइट? इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. तो जब आप इतनी गाय लेके आते हो ना, इस तादाद में गाय लेके आते हो, तो वो और मीथेन रिलीज करती हैं. मीथेन क्या कर रही है? आपके एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है. गर्म करने से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज. कितनों को लद्दाख जाना है मोटरसाइकिल लेके अपनी हिमालयन पे, वो इतनी जोर से आवाज करते हुए कि कोचिन में भी सबको पता चल जाए हम लद्दाख पहुंच गए. कितनों को करना है? अच्छा, वो उतना शोर भी मचाना है? वो शोर भी मचाना है. और क्या हो जाएगा शोर मचा के? सारे फर्जीवाड़े करने पर लद्दाख कोई नहीं जा रहा. कितने हो है लद्दाख? 1 2 हाथ उठे. बाकी लोग गए क्यों नहीं लद्दाख अभी तक भाई? बाइक नहीं है. अच्छा, तो मतलब आप वेट कर रहे हो कि आप 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदोगे फिर लद्दाख जाओगे? तो पहले लोन चढ़े सर पे है, जिंदगी बर्बाद हो जाए फिर जाओगे है. अच्छा, एनीवेज, सो द पॉइंट इज लद्दाख सबको जाना है ना. क्यों जाना है? एडवेंचर. अच्छा, एडवेंचर क्यों है वहां पे? क्लाइमेट है वहां का जो कि आपको चैलेंज करता है, राइट? इट पुशेस यू. हाउ मेनी ऑफ यू नो सोनम वांगचुक? हाउ मेनी ऑफ यू सोनम वांगचुक 3 इडियट्स कितनों ने देखी है? आमिर खान ने जिनका रोल प्ले किया है सोनम वांगचुक. कितनों को मालूम है कि सोनम वांगचुक पैदल चल के अभी लद्दाख से दिल्ली तक आए थे और अभी उन्होंने 16 दिन तक खाना नहीं खाया था. क्यों नहीं खाया था उन्होंने? Not on a strike. He was on a hunger strike. Yeah, but why? Climate change. Why? Because he said a simple thing: if we do not control climate change, places like Ladakh will cease to exist. Okay, and one of the reasons that we are speeding up climate change, right, is by consuming more and more meat on a daily basis. Now आप कहोगे यार मेरे एक जने के खाने से क्या हो जाता है? नहीं, मैं एक अकेला हूं. 8 billion people said that. 8 बिलियन का मतलब समझते हो? कितना नंबर बताओ? हिंदी में अगर हम हिंदुस्तान में बोलते तो क्या बोलते हैं? 800 करोड़. अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं. अच्छा, मुझे बताओ कितने जानवर मारे जाते हैं हर साल इंसान के खाने के लिए या कंज्यूम करने के लिए? कितने?
बिलियंस। तो अगर हम 8 बिलियन ह्यूमंस हैं तो कितने बिलियन एनिमल्स मारे जाते हैं? 8,000 करोड़ जानवर हर साल मारे जाते हैं फॉर ह्यूमंस टू कंज्यूम। 8,000 करोड़, 80 बिलियन। ओके, और इसमें मैं मछली तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं। मछली इट इज एस्टिमेटेड हर साल 2 ट्रिलियन, अब मेरे को हिंदी में तो वो भी नहीं पता, मेरे ख्याल से कितना, 8 लाख करोड़ मछलियां, नहीं सॉरी 2 लाख करोड़ मछलियां, जो भी होता होगा। ट्रिलियंस का मुझे हिंदी में नहीं पता कैसे किया जाता है, किसी को पता हो तो प्लीज मुझे बताना। राइट, इतना हम मारते हैं। तो अब इसका इंपैक्ट आप ये सोचो, एक हो गया यार क्या ये मोरालिटी का चैप्टर हो गया, मुझे तो मीट खाना है, मेरा तो कल्चर है, वो अपनी जगह हो गया। पर आपका कल्चर, अगर हम कल्चर की ही बात करते हैं, सो एवरी कल्चर ऑल्सो टॉक्स अबाउट respecting the land that we live on, respecting the land that keeps us alive, right? Respecting the very land that we depend on. अर्थ कितनी है? कितनी है? कि आप में से इलॉन मस्क कौन है? सॉरी, इलॉन मस्क इन द रूम? इलॉन मस्क? एनी इलॉन मस्क इन द रूम? नोबडी, राइट? तो आप मार्स तो नहीं जा पाओगे ना? आप मार्स जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, यहीं मरोगे। हम सबका अंत इसी धरती पे है, ये सच है। So can we preserve this? Should we preserve it? Yes, right? Do you know what is the most likelihood of death post 2030 in India along the coastline? Not cancer, not old age, but not 2030, post 2047. What is the most likelihood, most likely cause of death? कौन सा एक्सीडेंट? एस्ट्रॉइड तो सिर्फ कोस्ट थोड़ी ना खत्म करेगा, ड्राउनिंग, हम डूब जाएंगे। कोई बात नहीं, इनको जयपुर में डुबोना। गुड पॉइंट। So the point is that at the end of the day we have to be responsible for what we are doing, and it doesn't have to come at the cost of everything that we are doing. हम ये आज भी कर सकते हैं while achieving our ambitions of making money, being independent. देखो, अब एनफील्ड खरीद के दुनिया घूमनी है यार, ये तो देखो मैंने करी हुई है। ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रा होती थी, मैंने अहमदाबाद से लेके मैंने हिमाचल का चप्पा चप्पा, मैंने पूरा देश मैंने एनफील्ड पे घुमा हुआ है, गरीबी में, वो भी जब मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री छोड़ दी थी, मैं बैंकिंग में चला गया था, बैंकिंग ने मेरे को तबाह कर दिया। ठीक है, बैंकिंग ने मेरे को बोला हम सस्टेनेबिलिटी का काम करेंगे। उस बैंक का एमडी इस समय जेल में पड़ा है। यस बैंक। वो सिर्फ एक चीज को यस बोलता था, सर आपके घर पे रात को पैसा भिजवा दे, यस बैंक। बाकी हर चीज को मना कर देता था। सो एनीवे, सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू क्विट एंड आई डिसाइडेड टू गेट आउट, लिव माई लाइफ, सी व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड आई हैव डन दैट। एंड आई वेरी ऑनेस्टली टेल यू दैट Enfield, of course, for me it was very important because it took me around. But was it an enabler? No, it was not. Okay, it was useful. So my point is कि आप ambitions अपने ठीक करिए, पर अगर आपने साथ साथ पैसे बनाने और अपनी इंडिपेंडेंस करनी है, आप ये तब भी कर सकते हो while doing something that instead of destroying our planet helps to revive our planet. कितने लोग गांव से हैं यहाँ पे? Anybody from a village? From a village? Okay, from a village, all of you, right? How many of you in your village have actually seen the problems that climate change has brought? Droughts, right? आप फर्टिलाइजर डाल डाल के थक गए पर अनाज नहीं उग रहा है, राइट? किसी के गांव में अभी तक हुआ कि इंसान काम करने गया था, घर वापस नहीं आया क्योंकि गर्मी से मर गया, राइट? लास्ट ईयर यूपी में 110 रिपोर्टेड डेथ्स थी, पर एस्टिमेटेड है 1000 से ऊपर था, राइट? बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत हाई हुई, टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, जो लोग एसी रूम में नहीं थे, ज्यादा एक्सपोजर हुआ, किसी भी एज के 27, 28, 30 साल के लोग भी, दे पास्ड अवे, राइट? बिकॉज आपकी बॉडी कुड नॉट कूल इटसेल्फ डाउन इनफ. So how do we stop all of this? We have to now help the planet revive itself, fix itself. So how can we do that? Any suggestions? क्या कर सकते हैं हम? कितने मिनट हो गए? 2-4 मिनट और? 5 minutes? Okay. क्या कर सकते हैं हम? Grow more trees. Okay, that is one solution. One solution. Okay, wonderful, excellent. Anything else? Yes. Sorry, who said that? Who said that? Burn less. Correct. Burn less fossil fuel. Fossil fuel. Let's be more specific. Okay. Anything else? Okay. Yes. Save water, but that is more of a consumer thing at a very local level. पानी तो धरती पे बहुत है. प्रॉब्लम ये हो रही है कि फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है,
right? That is what's the problem. Anything else? Of course, still save water, huh? Please, I'm not saying don't save water. Jaipur mein to bhaiya, please save water, right? Anything else? But how, right? So that is exactly what we have to do. But exactly what ground level action can we take? आप unfortunately AC ban नहीं कर सकते considering what's happening right now. So maybe you can have more energy efficient air conditioners, right? What you can do is you could have solar panels operating our electricity जो है solar wind से आए, hydro जो कि non harmful hydro से आए. That is one option. Anything else? अपने level पे सोचो, hospitality students क्या कर सकते हो? Okay, yes, avoid using plastics. That's one way. So basically, avoid our reliance on fossil fuels, what he said. So not burn them, but also not convert them to garments, plastic bags, right? Liners, whatever we are doing with them. आप as hospitality students को एक idea दो ना मेरे को. आप क्या कर सकते हो? क्या? हाँ ठीक है. At a personal level, yes, that would actually be brilliant. If the whole world would actually quit meat today, guess how much % land can be completely given back to environment? 75% of all agricultural land today can actually be sent back. आपको पता है कितना मैं आपको एक साइज के उसमें देता हूँ. इंडिया का साइज तो सबको मालूम है कितना है, गिव और टेक, है ना, मतलब नॉट स्क्वायर मीटर्स. हाउ बिग अ कंट्री वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इस समय एनिमल्स को इंडिया से 15 गुना ज्यादा लैंड सिर्फ एनिमल्स के लिए डिवोटेड है, राइट? सो इफ पीपल स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर मीट, इवेंचुअली स्टॉप ईटिंग मीट, एग्स, डेयरी. अभी ये मत बोलना अरे पर मेरे को तो आइसक्रीम के बिना मैं मर जाऊंगा. कोई नहीं मरता आइसक्रीम के बिना. चीज, ठीक है, कोई नहीं मरता चीज के बिना, राइट? बट इफ वी स्टार्ट रिड्यूसिंग दीज थिंग्स, हाउ अबाउट वन मोर क्वेश्चन? What if we start pushing plant-based diets as hospitality students, as F&B professionals, as chefs? What if we start pushing plant-based? What is a plant-based diet? Any? नहीं, that is one component. So vegan नहीं, so vegan and plant-based में थोड़ा सा difference फटाफट clear कर देता हूँ. Vegan is a lifestyle. Okay, as part of that, what you say is, I am not going to put an animal to use for my personal benefit. So a person who's vegan, so I am not vegan, unfortunately. I would love to be, but मैं नहीं हूँ. Okay, a vegan would not even wear wool, not consume honey. Okay, they would not जैसे अगर गांव में कोई है जो खच्चर चलाता हो अपने लिए सामान लाने के लिए, तो वो अगर vegan हो जाता है कहेगा मैं जानवर नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा या खुद करूंगी. Okay, that's a vegan. Plant based क्या है? ऑर्गेनिक तो कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक तो खाना हो सकता है. प्लांट बेस्ड मतलब वो जो कि सिर्फ प्लांट से खाना आया, राइट? प्लांट्स एंड ट्रीज से खाना आया. दैट्स अ प्लांट बेस्ड डाइट. इज इट पॉसिबल? कैन वी स्विच टू अ प्लांट बेस्ड डाइट 100% while catering to our taste buds? Getting fat, nice and fat. ये मतलब संडे मॉर्निंग सो के उठे तो ऐसे लगा ये इस हफ्ते 2.5 किलो मस्त बढ़ा, अच्छा बढ़ा, मजा आ गया 2.5 किलो बढ़ाने में. हाँ क्या चाहिए? आलू के पराठे. आलू के पराठे, हाँ क्यों? घी नहीं लगाओ, घी मत लगाओ, मक्खन मत लगाओ, 100 और चीज़ें होती हैं यार. छोले के साथ खाओ. छोले के साथ आलू के पराठे खाते हो? कितनों ने छोलों के साथ आलू के पराठे खाए? कितनों को छोलों के साथ अब आलू के पराठे खाने? कितने बिना लंच करे आए? शुक्र है, तभी सो नहीं रहे हो. आधे मरने वाले हो पर आधे नहीं. Okay, so now see what I feel is, talking to you here, I think as a group of students here, the one thing that you as hospitality professionals that you will be very shortly, the one thing that you can do is help the world move to a plant-based diet while you make your money. How can you do that? Multiple options, right? You can start a restaurant which is fully plant-based. आज के दिन में big hotel chains are launching completely plant-based restaurants, right? मैंने कोई example में दिमाग से निकल गया है. But I think Intercontinental का ही अभी, I think Intercontinental Mumbai. Sorry, somebody was adding to that. Get up and बोलो ना. हाँ. कहाँ पे है ये? बॉम्बे में. Is it in Intercontinental itself? नहीं, but it's a Bombay-based restaurant, right? Which was recently announced. And of course, Michelin-starred restaurants तो बहुत हैं जो कि अब plant-based जा रहे हैं. I hope a plant-based
cuisine is not something that none of you have never heard of. ये आइडिया तो मैं कुछ ऐसा एकदम बिल्कुल यूनिक फर्स्ट टाइम तो नहीं सुना रहा हूँ ना किसी के लिए. कितनों के लिए पहली बार है? प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी. ओके, 1 2 people और 3 people. बी ऑनेस्ट विद मी यार, ठीक है? आपके जैसे नॉट हेयर बट IHM पूसा में मैंने भी इसी तरीके से सीखा था, इन्हीं सीट्स पे बैठ के, राइट? हमारे टाइम पे यार कोई बोल देता ना यार रेस्टोरेंट विदाउट मीट, तो हम तो उसको कहते यार क्या पागल हो गया यार, कोई खाना ही नहीं खाने आएगा. Nobody would come to our restaurant to eat food. But that is not the truth anymore. People are actively seeking more restaurants जहाँ पे completely plant-based menus हैं. Okay? So that was my seminar, but I have a challenge to now present to all of you. Any doubts, any questions, anything you'd like to ask me? जो मैंने facts present किए, जो मैंने आपके साथ चीजें कुछ आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ बोल दिया जो that did not make sense to you or sounded incorrect. Any questions that I may have helped you think of that you want to ask me? There is a competition for you now. Okay, this is how it's going to work. There are two options. One, you could either form a team or you can participate individually, right? मान लो आप अगर टीम में हो तो थोड़ा सा एक रूल अलग हो जाएगा. अगर आप इंडिविजुअली करो तो एक रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. आपने क्या करना है, आपके पास होंगे exactly 20 minutes once I'm done explaining this competition to you. In those 20 minutes, if you want to work as a team, quickly form a team. If you want to do this individually, you're ready, okay? What you have to do is आपको एक अपना एक रेस्टोरेंट मुझे पिच करना है. मैम और मैं आपको जज करेंगे इस बाद में, ठीक है? मैम आपको जज करेंगे किन पैरामीटर्स पे और मैं किस पे, मैं आपको समझाऊंगा. आपके पास वो 20 मिनट है अपना रेस्टोरेंट आइडिएट करना है. ये कंप्लीटली प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट होगा, ओके? तो आपको मुझे 3 चीजें पिच करनी है. आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा, ओके? आपके रेस्टोरेंट की आप मार्केटिंग कैसे करोगे, ओके? सो रेस्टोरेंट का नाम और कहां होगा, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू डू अ क्लाउड किचन, दैट इज आल्सो फाइन, ओके? यू वांट टू सेट अप अ फिजिकल रेस्टोरेंट समवेयर दैट पीपल कैन कम टू, दैट इज फाइन. तो रेस्टोरेंट का नाम कहां होगा, रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा, कहां होगा, और आप किस क्विजीन के साथ काम करोगे. यू वांट टू वर्क विद लेवांट, यू वांट टू वर्क विद ओरिएंटल, यू वांट टू वर्क विद अवधी, व्हाटएवर क्विजीन इज योर इंटरेस्ट, ओके? यू हैव टू, ये 3 चीजें वापस से रिपीट करें. क्या क्या होगा? नाम एंड क्विजीन, ओके? नेम, लोकेशन, क्विजीन. उसके बाद आप मुझे समझाओगे कि आप अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कैसे करोगे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. वो नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट? बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट चालू हो जाते हैं पर अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते तो लोग आते नहीं है. आपको कोई बहुत एलैबोरेट मार्केटिंग स्कीम नहीं देनी है मेरे को. आप बेसिकली किस चैनल्स में करोगे, मतलब आप कैसे करोगे, ऑफलाइन करोगे, ऑनलाइन करोगे, क्या, छोटा बेसिक आपको मेरे को एक एक्सप्लेन करना है. एंड थर्ड, and this is the big one, you have to share 3 signature dishes, completely plant based, okay? तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी फेमस मीट डिश को लेकर के आप उसको प्लांट बेस्ड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. आपको ये समझाना है कि आप मॉक मीट लोगे, मॉक मीट किससे बनेगा, राइट? आपके पास सिर्फ 3 मिनट है टू कंप्लीट योर पिच. 3 minutes, okay? After that, so how many people want to participate in this very quickly? 10, 3. हाँ. ये वही है, लद्दाख तब जाएंगे जब एनफील्ड आ जाएगी. लद्दाख फ्लाइट भी जाती है और सिर्फ 3,000 में, 1.5 लाख में नहीं. मजा लाइफ में बहुत चीज़ों में आता है, राइट? पर लॉट ऑफ दोज थिंग्स मज़ा लेने के चक्कर में हम अपनी प्रायोरिटी भूल जाते हैं, राइट? और वो जब आप अपनी प्रायोरिटी से आँख हटा लेते हो तो 10 साल बाद पता है क्या होता है यार, ना तो ये हुआ और ना ही ये हुआ, रिग्रेट. ओके, एनीवेज, कमिंग बैक, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस? रेज योर हैंड्स वेरी क्विकली, ओके? सो यू आर अ टीम, ओके, राइट? So those of you team, okay, those of you who are not interested in participating, आप एक बार को पीछे चले जाओ प्लीज. हाँ, अब आप इसको बंद कर दो. Your 3 minutes start now. आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है. हिंदी सर. हिंदी, बढ़िया. स्टार्ट करें सर? हाँ हाँ, of course यार. Of course, all the best. Don't worry, go. All the best. स्टार्ट करें सर? हाँ जी. पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों अलग अलग बात है. पैसा कमाना, पैसा अगर अपन कहीं जॉब कर रहे हैं,
कहीं भी जॉब करें किसी भी फील्ड में, तो पैसा कमाना हो गया। आप जब जाओगे तभी आपको सैलरी मिलेगी, या ठीक है, पैसा कमाते रहना। आप कोई एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं अच्छा, और बहुत अच्छे से चल रहा है वो, और फेमस हो गया, तो पैसा कमाना। आप अगर नहीं भी जाओगे रेस्टोरेंट में तो भी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, काफ़ी रेस्टोरेंट देखे होंगे आपने, रेस्टोरेंट तो काफ़ी सारे के इंडिया के अंदर, अदर कंट्री में भी काफ़ी सारे के रेस्टोरेंट हैं, ठीक है। बट लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो कहीं है नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए। 99% क्या करते हैं, 100 में 99% लोग वही करते हैं जो लोग कर रहे हैं, एक ही के पीछे भागते हैं। ये ऐसे डिज़ाइन बनाया तो मैं भी यार थोड़ा डेकोरेशन चेंज कर दूँ, बट कुछ ऐसा करो जो मार्केट में है ही नहीं, देखने लायक ही नहीं है अपन के बीच में। तो मेरा जो एक प्लान है वो ये है कि जेल रेस्टोरेंट। जेल रेस्टोरेंट, ओके, ठीक है। और ब्रांड नेम क्या है उसका? जेल रेस्टोरेंट, द जेल रेस्टोरेंट। आपने ट्रेन रेस्टोरेंट का भी नाम सुना होगा, लोगों ने कर लिया, काफ़ी सारी ट्रेनें बनवा कर उन्होंने रेस्टोरेंट डिज़ाइन वगैरह करके करा डेकोरेट। बट जेल रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है, काफ़ी कंट्री में भी है, मैंने सुना है, देखा तो है नहीं। जेल रेस्टोरेंट होगा, उसके अंदर कस्टमरों के साथ में ऐसा ही बिहेव करा जाएगा जैसा जेल में करा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हम मार्केटिंग की बात करते हैं, अपन उसको चलाना कैसे है। सबसे मेन चीज़ यही आती है, खोल तो बिजनेस हर कोई सकता है, आप लोग सब खोल सकते हो, तो उसको चलाना सबसे बड़ी बात है कि अपन को चलाएं कैसे उस बिज़नेस को। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ मैं खोलूँगा वो होगा टूरिस्ट इलाका, जैसे आमेर, जल महल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और ऑल कंट्री के टूरिस्ट आमेर, जल महल यहाँ पर ही आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक अपना रेस्टोरेंट होगा जो जेल के नाम से होगा, ठीक है। मार्केटिंग के लिए 1 मिनट बचा, 1 मिनट बचा आपके पास। मार्केटिंग के लिए सबसे पहले जितने भी जो टूरिस्ट जो ड्राइवर वगैरह होते हैं उनसे अपन को संपर्क करना है, ऑनलाइन डालना है अपन को, ठीक है। और मार्केटिंग के लिए कस्टमर को सबसे पहले अपन को ऑफर देना है। आप पहले कमाने की मत सोचो कि मुझे पहले कमाना है, पहले कमाने से पहले गंवाना भी पड़ता है कस्टमर। तो अपन को सबसे ज़्यादा ऑफर देना है क्लाइंट को, ठीक है, जो अच्छा व्यवहार करना है उनसे, तो वो अपने आप आएंगे। और अपनी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए अपनी रेसिपी की। अपन कुछ भी बेचें बट क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर दोबारा चल के आए, अपन को खुद को नहीं बुलाना पड़े उसको। और आप कुजीन क्या सर्व करोगे, खाना क्या सर्व करोगे, आपकी 3 सिग्नेचर डिशेस क्या होंगी? खाने में सर इंडिया के जो अपने राजस्थानी खाना है उसी में, जैसे कि दाल बाटी चूरमा हो गया, ठीक है, वेज रेस्टोरेंट रहेगा पूरा वो। दाल बाटी चूरमा हो गया, राबड़ी हो गई, ठीक है, और बाजरे वगैरह से रिलेटिव काफ़ी सारे के आइटम बनते हैं, रोटियां वगैरह, बेजड़ की रोटी हो गई। तो बाहर की जो कंट्री के क्लाइंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को खाने को। राबड़ी मतलब जो की राबड़ी आती है सर। अच्छा, तो इसमें कुछ इसमें दूध या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं सर, छाछ और राबड़ी होती है वो। अच्छा, बट ये तो दूध से बनी हुई चीज़ नहीं, दलिया होता है अपना, जो होता है उसको अपन जैसे दलिया बनाते हैं वैसे उसको बनाते हैं, जो को पीस कर, है ना, और उसको सुबह छाछ। नहीं, पर छाछ तो दूध की हुई ना, दही की छाछ होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। राइट। आपने जो अपनी डिश बनानी है जी सर। उसमें जानवर से आया हुआ कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, उसमें ना दूध होना चाहिए ना दूध से आई हुई चीज होनी चाहिए। ओके। तो आप उसको कैसे रिप्लेस कर दोगे? अच्छा, मिल्क नहीं होना चाहिए उसमें। मिल्क से भी बनी हुई कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मिल्क से तो दाल बाटी चूरमा आप बना सकते हो बिना उसके? बिल्कुल सर। ठीक है, फिर आपने बोली जो जवार की आप। हाँ, तो जो जवार की राबड़ी सर गुड़ के साथ दे सकते हो, और है ना खिचड़ी हो गई, मक्के की बाजरे की खिचड़ी हो गई, वो भी अपन इसमें कर सकते हैं। हाँ, कोई नहीं कुछ। हरीश, आपने कहा कि आप जेल बेस्ड बनाओगे, जेल रेस्टोरेंट। जेल रेस्टोरेंट बनाओगे ना, थीम वही फॉलो जी मैम। हाँ और आपने बोला वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे करते हैं। हाँ मैम। मतलब क्या कह रहे हैं? मैम इसका मतलब ये कि मैंने एक न्यूज़ में भी पढ़ा था कि बाहर कंट्री में यूएसए में जेल है, जेल रेस्टोरेंट है। इंडिया की बात करते हैं पटना में भी है, अपने पटना में। उसमें कैसा मतलब ऐसा क्या करोगे कि गेस्ट को लगे कि जेल रेस्टोरेंट है अपना, जैसे कि क्योंकि खाना तो आपका रजवाड़ी हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मैम। जेल से तो नहीं मैच कर रहा। मैम एक्चुअली क्या, देखो अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मानता हूँ कि 3 डिश आपने मुझे बताई थी, ठीक है, बट आप कोई से भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही अपन डिश देते हैं। तो आप बेसिकली डेकोरेशन कांसेप्ट में कह रहे थे जेल जैसा। हाँ, जैसा सेम पूरा जेल जैसा होगा, और उसमें बर्ताव कैसा होगा? बर्ताव भी इनकी तरह ही होगा, कैदियों की तरह ही। कैसा बताओ? हाँ हाँ बिल्कुल। प्लीज नॉट वाइल स्पीकिंग। हाँ, जेल में जो
गेट होता है उसके अंदर उनको बिठाया जाएगा, हथकड़ियाँ लगाई जाएगी, ओके ठीक है। और फिर जब खाना दिया जाएगा तब उनकी हथकड़ियाँ खोली जाएंगी, उनके जो खाना खा सकें वो, ठीक है। और जो वेटर्स वगैरह रहेंगे वो भी वर्दी में रहेंगे, ठीक है। और रिसेप्शन वगैरह सब पूरी यूनिफॉर्म वर्दी में रहेगी। ठीक है। मतलब लोगों को कुछ नया देखने को मिले। आप मार्केट में जाते हैं, आप वहाँ पर देखते हैं अरे रेस्टोरेंट खुला है, रेस्टोरेंट तो सेम है हर कोई, पर कुछ अलग दिखना चाहिए। ये पार्टी में बहुत सारी कीमें बन रही है, जी मैम। और ये आ रहा है कहाँ से? तो कई काफ़ी सारे के जो कैदी है उनकी डिश अलग अलग फरमाइश भी तो होगी ना। है ना, मैं कह रही हूँ तो आपकी 3 सिग्नेचर डिश में दाल बाटी चूरमा आ गया, जी बाटी और चूरमा दोनों देसी घी में बन रहा है, जी और देसी घी गाय से आ रहा है, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एनिमल से आ गया ना, जी मैम। और हम एनिमल वाला कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। मैंने क्या सर मैंने डिश का सुना नहीं था, फिर भी मैंने सोच के बताया। तो he thought vegetarian. हाँ। He thought हाँ, vegetarian. कोई बात नहीं, अच्छा है concept. जी। Good Unique- concept. unique concept. Yeah, well done. चलो। एक्चुअली क्या सर, ये मार्केटिंग का क्या, हमारे फादर की फैक्ट्री है सैनिटरी नैपकिन पैड की, हाँ। तो मैं उसमें टाइम देता हूँ यहाँ से जाने के बाद में। अरे वाह, हमारा खुद का ब्रांड है सुकुमारी, जैसे विस्पर स्टे फ्री आता है वैसे हमारा खुद का भी ब्रांड है। well done यार, excellent हरीश, good job. Okay, next आ रहे हैं, हरीश वो मेरे को माइक दे दो जरा। ओके, चलो मैं एट रैंडम, मैम आप एक बताइए इसमें से किस टीम को बुलाया जाए, ये टॉप की ये 3 टीम में से। ये वैभव को बुला लेते हैं। ठीक है, चलो वैभव एंड टीम, हु इज द वैभव एंड टीम का रेप कौन है? योर वैभव, ओके कम। पहले you please clip this on yourself, on your shirt or your tie, either of the two places. बच्चों को सबको कंटेंट देख देख के सबको मालूम है कैसे माइक छुपाना है सर के पीछे। कौन यार आज हमारे कितने लोग देखते हैं? शुक्र है एक कॉलेज अभी भी बचा है। अच्छा वो एक उसने हाथ उठाया था, उधर से बता रहा था नीचे हो। नहीं यार, I have nothing against him. I've never heard him. I'm just Sir, we can speak by seeing now. हाँ, and you can speak in English or Hindi. It's completely your. Oh. Yeah. So, hello everyone. Myself, founder of Plantology. Plantology basically is a restaurant that will serve you fast food, snacks, and a blend of Awadhi cuisine by a minimalist blend of plant-based proteins. Especially what we found in Awadhi cuisine that there is a vast variety of meat used in it. So, just to cater that thing and to give nature a rest from all these things, let's make it fresh from plant-based as it is possible. Many of you think that it is something that how can you give that texture and how can you bring that flavors into it, but the flavors that are brought into that are not non-veg, that are something which we get from our plant-based things. So it is possible. For this I am making a pitch by the name of Plantology, in which we have a USP of a plant-based healthy products, low cost pricing, and especially the cheese products that we are going to use is made from soya, nuts, cashews, vegetable oils, and etc. Especially combining to the price range value as well as to the tier 1 cities where you can get low pricing amount and good food. Basically, how can we do our pricing is that we are going to open a cloud kitchen. If we open a cloud kitchen, we do not require a good ambience, a good place where guests can sit. The main motive of us is to provide healthy and nutritious diets to our people. So coming to the marketing strategy, we can hire social media influencers that are locally available in that particular city. We can continue to that. We can have a marketing campaign spreading awareness to the plant-based product that they are also as much good in taste as much of the non-veg products as well. Coming to the motive, we have a motive to spread plant-based diet. As of like we have think of it to make an offer that on doing a specific amount of purchase from our restaurant or from our cloud kitchen, you will get a small plant that you can plant in your houses and make this planet more green. So coming to our star products will be a variety range of veg and non-veg burgers, a variety range of cakes, bakeries, and a special star ingredients that I have named myself veg anda curry. So, ma'am, may I ask you a question? Yes.
So you said veg and non-veg burgers, right? Yeah. So what will be your core, the so-called protein that Master Chef has made so popular? What will be that? So the protein substitute that we are going to use in that is kidney beans. Kidney. Yeah, Wonderful. it is a substitute of glavati kebab. Lovely. Okay. What was the second thing you said? Second thing that I said was cupcakes and cakes that we are going to use from the coconut flour and the coconut milk. And what And is this veg anda curry? The veg anda curry is basically nothing, just taking makhani gravy, taking potatoes, making a hollow sphere in potatoes, stuffing in that spinach, corn and variety of vegetables mixed together, making a stuffing into it just like an Portuguese egg, and and then we'll grill them. We'll give it the texture of that egg curry and we'll serve it to the guest. Wonderful. अच्छा now talking about मैम ये मैं तो आपको ज़्यादा ग्रिल कर दूंगा क्योंकि मैं I think मेरे को मखनी ग्रेवी मेरे को नहीं याद कैसे बनती थी बट मेरे को मार्केटिंग के बारे में आपसे पूछना है Yes. ठीक है so आपने बोला कि आप लो कॉस्ट करना चाहते हो Yes, sir. right that's wonderful I think that is one of the best ways to bring in a customer but my question is see today mock meats are expensive right because they are packaged so will you to keep your costs low make your mock meats in your restaurant? For sure, sir, we can. If we are having a cloud kitchen, respectively, we just require kitchen and equipments, no What city are you ambience. going to work in? Sorry? What city are you going to? Tier 1 cities like Bombay, South Bombay, Delhi, South Delhi, they are the most proud in that. यार वहाँ तो क्लाउड किचन का रेट पता है आज के दिन में कितना होता है? Sir, cloud kitchens is not just that we can do from a rented place, we can do from our houses as well. Fair, good, ठीक, good point. I think मैम मेरी तरफ से तो वो है but cuisine पे मुझे थोड़ा Whether Yes, ma'am. makhani gravy, Yes, ma'am. lots of makhan. Ma'am, Where does it come from? ma'am, we can use as for makhani gravy, it is not specifically that we have to put lot of makhan into it. Name But- itself says makhan. Yeah, itself, but we can use some You just tell me what is the replacement. like from butter. We can if we go to a substitute of butter, we can use the plant-based cheese that we are going to make. We can Cheese is fat, but it is not a cooking medium, no? no, but the vegetables oil that we are going to use in that particular cheese that can be extracted and can be used as a fat to give it a texture. But butter and cheese have totally different effect. But ma'am, vegetable oils that are there in the market that will give it a texture. Not that particularly. We add butter, it melts and then it gives its unique Yeah. taste to it. Okay. Now you're saying you replace it with the cheese. No, replace it with the vegetable oils that we are going to use in our vegan cheese. Okay. oh yeah fair but आप जो देखो so my concern here is आप जो suggest कर रहे हो ठीक है आप जितनी भी बात करो so this is where I see the problem. Okay. You are talking about everything that needs a lot of engineering Yes, sir. and then you want to make it low cost. Yes, sir. So you sure you'll be able to achieve Yes, sir. I myself is an engineer pursuing so much of courses. that? ठीक, चलो, fair. I like that. I appreciate that positivity. Ma'am, ये बताओ। Actually, what is the replacement of butter? Ma'am, currently what I have thought is of vegetable oil only. नहीं, वैसे बता दे. वैसे तो ma'am I don't have current What knowledge. is margarine? Yes, ma'am. Is it a replacement for the butter? But ma'am, it is not good for health. Is it a replacement? Kind of, but I won't prefer in my business if I am going something towards nature so much. Why? Because- Nature को क्या harm? If ultimately humans are going to harm and it is going to harm the nature as well. Okay. ठीक है, fair enough. That's not necessarily true. See, margarine may be unhealthy for the human body, but it's not harmful to the environment. In fact, margarine is a far more sustainable alternate to And cheaper also. and cheaper. Your low cost can be achieved by using margarine. I'll sure make that point in my speech. Fair enough. Good point. Sure. Anything else? Thank you. Good pitch, yeah. Good pitch. Nice job. Priya की team का है. प्रिया की टीम में से कोई बचा नहीं, सारी चले गई। सर, मेरे ख्याल से दुकान पर चलाए जा रहे हैं. आजकल चले. आधी जो है PI के कॉल था। शांतनु, शिवांश, लक्ष्य, तुषार, क्रिश, तुषार ने- है? तुषार ने- तुषार. तुषार।
अच्छा वो क्लिक कर लेना हाँ वो टेबल पे से एक माइक रखा हुआ है आप उसको अपनी शर्ट पे क्लिक कर लो चलिए आपका टाइम शुरू अब बाहर कोई और रह गया क्या नो सर सब हो गया रखते जिसको आती है ऐसी कोई टीम है जो दिक्कत जहां हो पर आपका रिप्रेजेंटेटिव चला गया है लास्ट वेट करो सबका हो गया कोई अगर इंडिविजुअली भी पिच करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो नाउ दैट मोस्ट पीपल आर गेटिंग टू बी Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. As everybody knows, our team is opening a restaurant, ओके which is plant based. Our restaurant name is Vegify. वेजी Vegify. FIRE FY last में. वेजी It is located in Darjeeling near Sanchal Lake because we are giving the ambience of wood logs, a wooden theme. That's why our guests will attract more because of the lake and forest. Our main we have given two types of cuisine, Thai and Mexican. Thai cuisine, in Thai cuisine we are having veggie Buddha bowl, and which is our can say signature dish, and in Mexican we are having plantain taco. And more मार्केटिंग हाउ विल यू टू प्रमोट योरसेल्फ आप नोट्स पढ़ सकते हो हां यू एब्सोल्युटली फाइन हां हां so we are to take their local influencers, or by giving chance to one or two celebrities to come over there, ओके we can promote. We have to give an ambience that our restaurant speaks ki Okay. from front of the restaurant. ओके ओके एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड No sir. Okay. So, but see, good point. आपने, I love the idea, right? Going to Darjeeling and setting up a restaurant in a remote place, right? अभी आप जो बात कर रहे हो, जी सर। basically आप जो टारगेट कर रहे हो, आपका जो टारगेट ग्रुप है वो कौन होगा? Locals होंगे, tourists होंगे? So mainly दार्जिलिंग में टूरिस्ट और लोकल्स दोनों होते हैं, और टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं. So आपका main target कौन है? Tourist, because foreigners, they are coming to India just for having different types of meals. Correct. Okay. Or they are morely prefer the veggies and different thing because they majorly took chicken at that place. That's why. Okay. So by the way, just so you know, plant-based diet is now far more adopted in Western culture than India. But that makes it better because since they are doing that, so they want to try more vegetarian and vegan food wherever they travel. So that's a good thing. So you want to target basically foreigners coming to Darjeeling. That's Yes, the sir. primary teach, right? Yes. Okay, good. अभी आप मेरे को बोल रहे हो कि आप एक तो influencer marketing कर रहे हो, right? That's a very good idea. And दूसरा आप कह रहे हो कि अभी ambience को you wanted to make mainly become the driver of growth. Yes, sir. right? But मेरा सवाल ये है, आप जा रहे हो, you want to do this all the way in Darjeeling, right? वहाँ पर जो लोग हैं, वो तो देख लेंगे आपको, पर आप एक सिर्फ influencer को use करके आप एक बहुत वाइड ऑडियंस तक तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि रिकॉल वैल्यू बहुत लो रहती है, वेरी Yes, sir. लो रिकॉल वैल्यू. तो हाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? अनलेस यू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. तो आप ऑन अ स्टेडी बेसिस क्या आप इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलरली बुलाते रहोगे कि डू यू हैव अदर आइडियाज इन माइंड एज वेल टू डू योर प्रमोशन? We have their own channels also in YouTube and in Insta, Twitter, everywhere. Okay. So you want to grow your social media presence and through that you want to Yes, sir. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? After this, Any active advertising? ट्रेडिशनल मीडियाज क्या होते हैं मार्केटिंग करने के? ma'am, advertisement in news, or we can give this to our newspaper also. Good. Good. Okay. Good. मैं खाने को लेकर इन्होंने दो ही सिग्नेचर दो ही डिशेस चीज बताइए, वेज बुद्धा बोले, मैक्सिकन टाको. आपकी फर्स्ट डिश में क्या है? Ma'am, it is basically a rice preparation dish. One second.
filled with nutrition bowl, in which there is a quinoa and variety of vegetables, legumes and black beans, topped with flavored dressings. कीमा क्या होता है? Sorry. What is कीमा? Legumes क्या है? लेकिन मैम एक वेजिटेबल प्लांट होता है जिसकी लीव्स की यूज़ करते हैं. आई थिंक सो. You sure? लेग्यूम्स इज अ यस मैम. ये एक है ये कैटेगरी है. ये एक मतलब बुद्धा बाउल में जाते हैं सब. लेग्यूम्स होता है. ये किसी ग्रुप ऑफ चीज का नाम है लेग्यूम्स या किसी एक इंग्रेडिएंट का नाम है? मैम एक इंग्रेडिएंट का नाम है. अच्छा चलो बताओ मैक्सिकन टैको में क्यों? अच्छा टैको तुमने क्यों चूज किया है? हम टैको दार्जिलिंग में आके तुम चाह रहे हो कि उनको अपना लोकल कुछ खिलाओ, कुछ इंडियन खिलाओ, बिकॉज तुम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो ना. जी यस मैम. टूरिस्ट तो टैको तो कहीं भी खा सकता है. मैम बेसिकली इट इज अ प्लांटेरियन टैको. मैं कह रही हूँ टैको तो हर जगह अवेलेबल है ना. यस मैम. आज जयपुर में भी मिल रहा है. किसी भी सिटी में जा रहे हो आजकल टैको मिल रहा है. यस मैम. और जो आपका जो आप कह रहे हो फॉरेन क्लाइंटल ही आप फोकस कर रहे हो, तो वो तो जहाँ से आ रहे हो वहाँ तो उसको मिल ही रहा है. तो वो यहाँ आके आपका टैको क्यों खाएगा? क्योंकि वेज नॉन वेज हर तरह का ऑप्शन उसको अवेलेबल है लाइफ में. ये इसमें यूनिक क्या बनाया आपने बेटा कि यहाँ पे आएगा, आप प्लान बेस्ड कह रहे हो और आप तब उसको टैको सर्व करें तो प्रेफर करेगा कि लेट मी सी कि इनका टैको कैसा है. क्यों? क्या यूनिक रहेगा इसमें? टैको क्या होता है? टैको एक डिश होती है जिसमें एक शीट कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जिसके अंदर मैम या तो वेज होता है तो नॉन वेज वेजीज होती हैं, या क्या कहते हैं ब्लैक बीन्स भी ऐड कर सकते हैं. अच्छा बट आपने लोकल कुजीन क्यों नहीं सिलेक्ट करी? मतलब दार्जिलिंग तो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? मोमोज. Yes. ग्लोबली Globally. क्योंकि लोकल कुजीन नहीं है पर वो फेमस तो मोमोज के लिए है बहुत. राइट, दार्जिलिंग के मोमोज बड़ी बात होती है. यस तो आपने कुछ लोकल क्यों नहीं सिलेक्ट किया? सर. जरा कह रहे मेरे यहाँ पे क्यों किया हो गया? सर लोकल तो वहाँ पे सब ही खाते हैं, मतलब मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट रखते हैं. आपकी बात सही. सो आप अगर लोकल्स को आप टारगेट कर रहे हो जी. अगर आपका देखो सो आपका यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन, आपने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी अपने लिए. आप कह रहे हो कि हम टारगेट करना चाहते हैं फॉरेन कस्टमर्स को, ट्रैवलर्स फ्रॉम अब्रॉड. Yes. राइट, एंड आप ट्रैवलर फ्रॉम अब्रॉड को वही खाना खिलाना चाहते हो जो दूसरी कंट्रीज में जाके खाएगा या अपनी कंट्री में खाएगा. अब तो आपने क्या कर दिया, टारगेट ऑडियंस और अपनी कुजीन का मैच में थोड़ी गड़बड़ कर दिया. व्हाट यू हैव टू डू वाज, अगर आप बाहर की कुजीन सर्व करना चाहते हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होनी चाहिए थी? लोकल्स. वो मोमोज खा खा के थक चुके हैं, उनको कुछ नया चाहिए. और बाहर वाले टैको खा के थक चुके हैं, उनको कुछ नया चाहिए. तो आप लोकल को मोमो खिला रहे हो, बाहर वाले को टैको खिला रहे हो, तो कहेगा हमें क्या नया मिल रहा है यहाँ पे. तो वहाँ गड़बड़ हो गई. बट ओवरऑल गुड थॉट. कोई बात नहीं, दैट्स डन. प्लीज, थैंक यू सो मच. थैंक यू. देखो इतनी तुमने मेरे से मेहनत करा दी, स्याही बह गई मेरे पेन में से. सदियों से ये नहीं हुआ था हाथ पे. चलो, गुड जॉब बाय द वे ऑल ऑफ यू, वेल डन. अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड सो मेनी ऑफ यू चोज टू स्टे बैक. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द होटल इंडस्ट्री हैज स्ट्रक इन माई लाइफ वंस अगेन एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम, इन्वाइटिंग हाफ ऑफ यू to the PIs, right? So guys, excellent pitches, all three teams. Okay, first of all, I really appreciate the thought process that you put in. आपका कंसेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. इनिशियली आप नहीं एक्सप्लेन कर पाए उसको, बट बाद में आपने आके उसको एक जस्टिफिकेशन अच्छा दिया. ठीक है, थोड़ा आपके क्विजीन में गलती हो गई, आपने घी और दूध वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल कर ली. कोई बात नहीं चिन्ना, अरे अच्छी बात है. बहुत बढ़िया. फर्स्ट टाइम अगर किया, कोई वही मैंने देखा, आपके सारे आसपास वाले जो थे सब बाहर भाग गए, आप रुके. ओके, एक्सेलेंट जॉब. एनकरेजमेंट दिखाई, आप स्टेज पे आए, बोले तो सही. हाँ, यूनिक कांसेप्ट लेके आए. बिल्कुल. वेल डन हरीश.
Please have a seat. Good job. Now, team 2. Yes. Excellent pitch. Everything was presented very logically. You had a very clear menu, right? Where you went wrong was you are trying to offer very highly engineered foods as of now, but you are trying to pitch it as a low-cost restaurant. मुझे नहीं पता at this point of time जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप उसको लो कॉस्ट पे इस समय डिलीवर कर सकते हो कि नहीं. नाउ लो कॉस्ट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव, राइट? बट ऑलवेज रिमेंबर विद एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का एक पाथ होता है टू रीच एन एम्बिशन एंड अ गोल. Getting to low cost is something that you could look at that in the long run. Team 3, very good pitch overall you tried. थोड़ा आपने क्या किया, आपने अपने आप को ही contradict कर दिया by selecting the wrong TG. ठीक है, या तो आप locals को लेते या आप cuisine दूसरी लेते. दो में से एक चीज आपको करनी थी. ये देखो आप कर सकते हो, बट जहाँ तक मेरी समझ है रेस्टोरेंट्स की, जितना मैंने काम किया रेस्टोरेंट्स में, मैंने वो देखो कॉफ़ी शॉप से भी मैंने मैनेज किए हैं, मैंने अपना फाइन डाइनिंग स्पेसिफिक कुजीन रेस्टोरेंट्स भी, क्या मैं टर्मिनोलॉजी भूल गया यार, आई एम सो सॉरी, इतने साल हो गए इंडस्ट्री छोड़े हुए. सो आई मैनेज बोथ. आई मैनेज द कैफे एंड so what happens is, see, to operate a cafe especially where you have multiple cuisines, right, targeting all kinds of people, you have to maintain far more inventory, right? You have to have far more options. Now at this stage and time, right, where we're talking about plant-based foods, of course the variety is far more, right? But if you want to go down the engineered route, then it's limited. But if you're willing to work with the kind of food which is already very natural, जिसमें आपको कोई engineer नहीं करना पड़ रहा है खाना, then it's a great option, right? उस केस में आप दोनों locals और foreigners with every kind of cuisine आप कर सकते हो. बट उसका क्या हो जाता है, एक थोड़ा मेरे ख्याल से विद टाइम स्टैंडर्ड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योरसेल्फ. बट ऑन द अदर हैंड, जैसे जयपुर में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, नीरोज है, राइट? नीरोज इज ऑलवेज टारगेटेड टूरिस्ट्स. लोकल्स मैंने आज तक नहीं सुना जो नीरोज जाना चाहते हैं, राइट? हर टूरिस्ट आ जाता है, पर हर टूरिस्ट नीरोज जाता है, राइट? तो उनके साथ क्या होता है, उस केस में आप एक रेस्टोरेंट को लेगेसी क्रिएट करके आप सदियों सदा चला सकते हो. और अच्छा, उसके ऑपोजिट एक एग्जाम्पल है लस्सी वाला, राइट? लस्सी वाला जो है, आज मैं यहाँ आने से पहले अनफॉर्चुनेटली, अब मैं चाहता तो हूँ मैं वीगन हो जाऊँ, पर मैं आने से पहले मैं भी एक लस्सी लगा, बिकॉज एवरीबडी गोज टू लस्सी वाला, इवन लोकल्स गो टू लस्सी वाला. वाई? बिकॉज लोकल्स के केस में क्या हो गया, एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि लोकल्स वहाँ पे आते हैं पीने के लिए, चाहे वो टूरिस्ट हो लोकल हो. तो थोड़ा क्या होता है, एक स्पेसिफिक होना टू बिगिन विद इज ऑलवेज बेटर. वंस यू ग्रो आउट, यू हैव दैट काइंड ऑफ कैश फ्लो, दैट काइंड ऑफ मनी, then you can say I'm going to be more wide, more my bandwidth would be wider as compared to now. That is what I suggest when it comes to business. बाकी of course restaurant छोड़े बहुत साल हो गए, तो हो सकता है मेरी knowledge information थोड़ी अब गलत हो. So who's the winner? Shall I declare all three as winners? नहीं यार, वो तो गलत हो जाएगा. Participation certificate है, right? Plantology wins, guys. Well done. Because and I'll tell you what, it is not that Plantology blew us out and the other guys blew us off and the other guys were like out of the competition. ऐसा नहीं था. It was a close call. हर आप तीनों की एक USP थी. आपका लोकेशन USP थी, आपका concept USP थी. What helped them get to the win was they had a very clear menu that they knew how they will work and how it will work. Okay, and branding was spot on, right? So well done guys. Thank you so much. आ जाओ एक बार ऊपर. ट्रॉफी और सर्टिफिकेट अभी है नहीं, हाथ तो मिला ही सकते हैं. आ जाओ एक बार, विनिंग टीम पूरी आ जाओ ना, पूरी की पूरी विनिंग टीम आ जाओ, फिर बाद में सब एक साथ करेंगे. अच्छा, पूरी विनिंग टीम चल गई. तो हरीश एक बार लेट अस जस्ट गेट अ शॉट विद हरीश, एक बार रुक जाओ, एक बार लेट मी जस्ट गेट अ शॉट विद हिम. वेल डन, कांग्रेचुलेशंस. अब सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाओ, अब पार्टिसिपेटिंग टीम के दोनों जने आ जाओ. मानसी, यू वांट टू टेक अ शॉट? एक फोटोग्राफ लेना है, इसको बंद कर दो. हाँ, आई थिंक दिस इज डन.